الحمدللہ نحمده ونستعینه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا صدق اللہ العظیم۔ تمام ساتھی بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، قرآن مقدس کی یہ بابرکت محفل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جن ساتھیوں نے محنت کر کے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کی محنت کو قبول فرمائے، ہم سب کو حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وقت انتہائی مختصر ہے اور قائدین کی ایک بڑی فہرست آپ کے سامنے جلوہ گر ہے، اور انشاءاللہ عنقریب ان کے بیانات بھی تفصیل کے ساتھ ہم سب نے مل کر سننے ہیں۔ میں چند باتیں عرض کرتا ہوں کہ آج کل ملک کے اندر ایک عنوان چل رہا ہے وحدت امت کا۔ کون سا عنوان ہے بھائی؟ وحدت امت کا۔ میں یہ ضروری سمجھوں گا کہ آپ کے سامنے اس کو تھوڑا واضح کروں کہ امت کی وحدت کو توڑنے کی کس نے کوشش کی اور کب کی؟ امت کی وحدت کو توڑنے کی کوشش کس نے کی اور کب کی؟ قرآن مجید کی جو آیت آپ حضرات کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اہل ایمان کے دو سخت دشمن ہیں۔ پہلے نمبر پر اللہ نے بتایا کہ یہود ہیں، اور دوسرے نمبر پر مشرکین ہیں۔ یہ دونوں اہل ایمان کے سخت دشمن ہیں اور کٹر مخالف ہیں۔ اللہ کے قرآن کی خبر یہ سچی ہے یا نہیں؟ مانتے ہو نا بھائی؟ اللہ کے قرآن نے یہ خبر دی ہے کہ اہل ایمان کے دو سخت دشمن ہیں، ان میں سے پہلا نمبر یہودیوں کا ہے۔ اور واقعی ہم نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے جب تبلیغ کا کام شروع کیا، اس وقت حضور علیہ السلام کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے والے یہودی تھے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے ٹکراؤ کیا، مقابلہ کیا، حضور علیہ السلام کے قتل کی سازشیں کی، حضور علیہ السلام کے ساتھ معاہدے کر کے اور معاہدوں کی خلاف ورزی کرتے رہے، آپ علیہ السلام کے ساتھ لڑتے رہے، مقابلہ کرتے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے۔ تو آپ علیہ السلام ان کے ساتھ جب مقابلہ کرتے رہے تو اکیلے ہو کر یا حضور کے ساتھ کچھ لوگ تھے؟ آپ علیہ السلام اکیلے بدر میں گئے، اکیلے احد میں گئے، یا ساتھ کن کو لے کر گئے؟ ساتھ کن کو لے کر گئے نا؟ تو جن کو لے کر گئے وہ کون تھے؟ بولو وہ کون تھے؟ اب میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ صحابہ دشمنی کب وجود میں آئی؟ کہ حضور علیہ السلام کے راستے کی رکاوٹ بننے والے یہودی تھے اور حضور کا ساتھ دینے والے صحابہ تھے۔ تو یہودی ہو گئے دشمن رسول اور صحابہ ہو گئے محافظ رسول۔ تو اس دن سے یہودیوں کے سینے میں صحابہ کی عداوت آ گئی، اور عداوت کی وجہ کیا تھی؟ کہ یہ یہودی دشمن رسول تھے اور صحابہ محافظ رسول تھے۔ یہ صحابہ دشمنی اس وقت سے شروع ہے۔ آگے چلیے، امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہودیوں کو ناکامی ہوئی، اور آپ علیہ السلام کی جب رحلت ہوئی تو یہودیوں نے خوشی منائی، اور انہوں نے کہا کہ اب ہم اسلام پہ غالب آ جائیں گے۔ لیکن حضور علیہ السلام کے بعد مسند خلافت پر حضرت ابو بکر صدیق آئے۔ صدیق اکبر کے دور میں یہودی
यहूदियों ने बड़ी बगावतें की, शरारतें की, साजिशें की, लेकिन सिद्दीक अकबर ने उन्हें कोई रास्ता नहीं दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में भी यहूदियों को पसपाई मिली। हजरत अबू बकर सिद्दीक के इंतकाल के बाद एक बार फिर यहूदी खुश हुए कि अब हम इस्लाम पे गालिब आएंगे, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाद मसरत खिलाफत पर फारूक आजम आए और हजरत उमर जो आए, उन्होंने यहूदियों को ऐसा रगड़ा लगाया कि यहूदियों की कमर तोड़ दी और यहूदियों को जजीरा अरब से निकाल दिया। हजरत उमर की 10 साला हुकूमत में यहूदियों की कमर टूट चुकी थी। हजरत फारूक आजम की शहादत के बाद यहूदी एक बार जमा हुए और उन्होंने खुशी मनाई कि अब हम इस्लाम पे गालिब आ जाएंगे, लेकिन उन्होंने अपनी हैयत को देखा, अपनी पोजीशन को देखा, अपनी ताकत और तवानाई पे नजर डाली। उन्होंने कहा अब हम इस्लाम का मुकाबला अलल ऐलान नहीं कर सकते। उमर ने हमें इतना रोंदा है, उमर ने हमें इतना मारा है, जजीरा अरब से हम निकल चुके हैं, हमारी कमर टूट गई है, हम कमजोर हो चुके हैं, लेकिन इस्लाम की अदावत, सहाबा की अदावत उनके सीनों में मौजूद थी। उन्होंने कहा अब हम अलल ऐलान इस्लाम का मुकाबला नहीं कर सकते, अब कोई तरीका बदले। फिर हजरत फारूक आजम की शहादत के बाद हजरत उस्मान गनी के दौर में यहूदियों ने आपस में मिलकर एक प्लान तैयार किया। इनके दिलों में सहाबा की दुश्मनी पहले से मौजूद है, सिद्दीक अकबर की दुश्मनी पहले से मौजूद है, फारूक आजम की दुश्मनी पहले से मौजूद है, उस्मान गनी की दुश्मनी पहले से मौजूद है, हजरत अली की दुश्मनी पहले से मौजूद है। ये यहूदी आपस में मिल बैठे, इन्होंने एक प्लान तैयार किया और इन्होंने कहा कि हम अलल ऐलान इस्लाम का मुकाबला नहीं कर सकते, अब कोई तरीका बदले। फिर उन्होंने एक प्लान तैयार किया, वो ये किया कि हम बज़ाहिर कलमा पढ़कर इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाए, अंदर रहकर हम जो नुकसान देंगे इस्लाम को बढ़ा देंगे। फिर हजरत उस्मान गनी के दौर में अब्दुल्ला इब्ने सबा यहूदी की सरबराही में यहूदियों का एक ग्रुप, यहूदियों का एक टोला बज़ाहिर कलमा पढ़कर इस्लाम के अंदर दाखिल हुआ। और ये थे यहूदी इस्लाम के अंदर बज़ाहिर दाखिल होकर कदम कदम पर अपने आप को कहने लगे मोमिनीन। ये थे कौन? यहूदी। ये थे कौन? बोलो भाई, ये थे कौन? यहूदी थे। अब्दुल्ला इब्ने सबा के सरबराही में हजरत उस्मान के दौरे खिलाफत में ये एक टोला यहूदियों का बज़ाहिर कलमा पढ़कर इस्लाम के अंदर दाखिल हुआ। कदम कदम पे अपने आप को कहने लगा मोमिनीन मोमिनीन, लेकिन हकीकत क्या थी? वमा हुम बिमोमिनीन। ये मोमिनीन नहीं थे, ये थे कौन? यहूदी। मैं वहदत उम्मत को किसने तोड़ा और कब तोड़ा, इसकी तारीख आपके जहन में उतारना चाहता हूं। आपकी तवज्जो मेरी तरफ रहे। हजरत उस्मान गनी के दौर में जब ये इस्लाम के अंदर बज़ाहिर दाखिल हुए, अब इन्होंने कहा कि अगर हम सबकी मुखालिफत करेंगे तो फिर हम इस्लाम में रह नहीं सकेंगे, इसीलिए हमें एक छतरी की जरूरत है, कोई साहिबान होना चाहिए जिसकी आड़ में हम अपने मौकफ को आगे बढ़ाएं। फिर उन्होंने सोच समझकर एक प्लान के तहत इन्होंने हुब्बे अहले बैत का नारा लगाया। ये थे कौन? ये आपको जुमला आखिर तक याद रहना चाहिए। ये थे कौन? यहूदी। ये थे कौन भाई? इन्होंने हुब्बे अहले बैत का नारा लगाया, हुब्बे अली का नारा लगाया, ताकि हमें कोई साहिबान तो होना चाहिए, कोई छतरी तो होनी चाहिए। उस छतरी की आड़ में इन्होंने आगे काम बढ़ाया। सबसे पहले इन्होंने एक बात छोड़ी और ये कहा कि सहाबा सारे इज्जत वाले, लेकिन हजरत अली का मकाम सबसे अफजल है। ये अकीदा देने वाला सबसे पहले अब्दुल्ला इब्ने सबा यहूदी है, और ये अकीदा उस वक्त इतना खतरनाक महसूस नहीं हो रहा था जितना इसके पसे पर्दा उनके खतरनाक अज़ाइम थे। हजरत अली का मकाम सबसे अफजल है, ये अकीदा सबसे पहले देने वाले कौन? आखिर तक आवाज आनी चाहिए, कौन? यहूदी थे। और जब इन्होंने देखा ये बीज कुछ लग चुका है, और उसके बाद इन्होंने अगर कोई आगे से पकड़ करता ये मुकर जाते,
उन्होंने देखा कि ये बीज कुछ लग चुका है, तो कुछ दिनों के बाद कहने लगे जी हजरत अली जब सबसे अफजल हैं तो खिलाफत का हक भी उन्हीं का था, जो उनसे पहले आए वो गासिब थे, माअज़ल्लाह अली पर जुल्म करने वाले थे, उन्होंने खिलाफत पे कब्जा किया, अली के साथ ज्यादती की, इनको बुरा भला कहना सवाब है और इन पर तबर्रा करना सवाब है। तो तबर्रे की बुनियाद रखने वाले भी कौन थे? बोलो भाई कौन थे? यहूदी थे। तबर्रे की बुनियाद रखने वाले यहूदी थे। यहाँ बड़ी चालाकी के साथ उन्होंने ये अकीदा दिया। देखें हजरत अबू बकर की अदावत उनके सीने में पहले से मौजूद थी, फारूक आजम की अदावत पहले से मौजूद थी, लेकिन यहाँ सबब दूसरा जाहिर किया कि जी हम अबू बकर को इसीलिए नहीं मानते कि उन्होंने अली का हक गस्ब किया है, लेकिन हकीकत इस तरह नहीं थी। हकीकत यूं थी कि अबू बकर की अदावत इनके सीनों में उस वक्त से आई थी जब से ये दुश्मने रसूल बने थे और अबू बकर मुहाफिज़े रसूल बने थे। दुश्मनी वही है, सबब दूसरा जाहिर किया। और इन्होंने कहा कि हजरत अबू बकर उमर उस्मान को हम इसीलिए नहीं मानते क्योंकि उन्होंने हजरत अली के साथ ज्यादती की, हक गस्ब किया, और आगे चलकर उन्होंने और बहुत सारे अकीदे बनाए। और फिर इन्होंने कहा कि हम जो बातें कर रहे हैं इन अकीदों को अगर कोई पानी देना चाहिए, कोई रिवायतें घड़नी चाहिए। फिर इन्होंने इंतखाब किया, क्योंकि हुब्बे अहले बैत का नारा ये पहले से लगाए हुए थे। इन्होंने इमाम जाफर सादिक के नाम से मन घड़त रिवायतें बयान करना शुरू कर दी और इमाम मोहम्मद बाकिर के नाम से मन घड़त रिवायतें बयान कर रहे हैं। ये वो दौर था जिस दौर में इमाम जाफर सादिक मदीनतुल मुनव्वरा में मौजूद थे। लोगों ने इनकी रिवायतें सुनी। ये रिवायतें घड़ने वाले अब्दुल्ला इब्ने सबा यहूदी के शागिर्द थे। इन्होंने रिवायतें घड़ी। उन रिवायतों को अगर कोई पढ़ता, उन रिवायतों का उन्वान ये था, अगर कोई पढ़ता उन रिवायतों का माहसल ये था कि सहाबा की अली से दुश्मनी थी, अली की सहाबा से दुश्मनी थी। ये अदावत वाली मन घड़त रिवायतें खुद बयान करते और मंसूब करते इमाम जाफर सादिक की तरफ। दरमियान वाले लोग इन्होंने देखा कि ये रिवायतें बयान कर रहे हैं इमाम जाफर सादिक के नाम से, ये चले गए इमाम जाफर सादिक की खिदमत में पहुंचे। हजरत आपके नाम से कूफा में, बसरा में, दिमश्क में, मिस्र में ये रिवायतें बयान की जा रही हैं कि आपने ये फरमाया है, आपकी ये रिवायत है, आपका ये फरमान है। और उन रिवायतों का माहसल ये था अली की सहाबा से दुश्मनी, सहाबा की अली से दुश्मनी थी। उसके बाद इमाम जाफर सादिक ने कहा इन रिवायतों के साथ मेरा दूर का भी वास्ता नहीं है। दरमियान वाले लोग इमाम साहब से मुलाकात के बाद वापस आए। इन्होंने रावियों को पकड़ा और उनको कहा कि अगर तुम कहते हो इमाम जाफर सादिक ने यह फरमाया है, अगर तुम अपनी रिवायत में सच्चे हो, चलो हमारे साथ। इमाम साहब के सामने चलते हैं, वहां उनके सामने अपनी तस्दीक करवाओ। तो ये रावी फंस गए ना, फंस गए ना, क्योंकि इमाम जाफर सादिक फौत तो नहीं हो गए थे, वो भी उस वक्त मौजूद थे। अब इन रावियों ने कहा कि हम इमाम के सामने नहीं जाएंगे। अच्छा झूठे हो इसीलिए नहीं जाओगे ना? इन्होंने कहा नहीं, झूठे भी नहीं है, हम इसीलिए नहीं जाएंगे कि इमाम साहब ने ये अकीदे हमें अकेले में बताए थे और हमें कहा था कि इनको जाहिर न करना। अब जो हम जाएंगे हमें इमाम साहब कहेंगे मैंने जो तुम्हें कहा था जाहिर न करना, तुमने जाहिर क्यों किए? ये कितमाने हक यानी हक को छुपाने वाला अकीदा ये उस वक्त से चला है, आज तक इनकी किताबों के अंदर मौजूद है। उसूल काफी में है कि इमाम साहब कहते हैं ऐ सुलेमान तुम ऐसे दीन पर हो मन कतमहु अअज़्ज़हुल्लाह व मन अज़ाहु अज़ल्लहुल्लाह, कि जो इस दीन को छुपाएगा अल्लाह उसको इज्जत देगा, जो दीन को जाहिर करेगा अल्लाह उसे जलील करेगा। ये वो मजहब है जो जाहिर होने के काबिल जाहिर होने के काबिल नहीं है। ये इतने मक्कार थे, इन्होंने एक मजहब की बुनियाद रखी। फिर दरमियान वाले लोगों ने कहा कि रिवायतें भी बयान करते हो, इमाम साहब के पास भी नहीं चलते, बहाने बनाते हो। अच्छा ये तो बताओ, अगर हम तुम्हारी रिवायतें पढ़ते हैं हमें पता चलता है कि अली की सहाबा से दुश्मनी थी, सहाबा की अली से दुश्मनी थी, लेकिन हजरत अली की जिंदगी करीब से गुजरी है। हम जानते हैं अली ने सिद्दीक के हाथ पे
زندگی صحیح ہے اور یقیناً صحیح ہے تو تمہاری روایتیں غلط ہیں، اگر روایتیں صحیح ہیں تو علی کی زندگی کا کیا جواب ہے؟ تو یہاں ایک بار یہ پھر پھنس گئے، انہوں نے مجبوراً ان کو ایک عقیدہ بنانا پڑا تقیے کا، کہنے لگے جی نہیں ہماری روایتیں بھی ٹھیک ہیں لیکن علی نے جو پیچھے نمازیں پڑھی، بیعت کی، بیٹوں پہ نام رکھے، یہ علی نے تقیہ کیا۔ یہ سارا انکسار امت میں ڈالنے والے کون تھے؟ کون تھے؟ یہودی تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آگے چلیے، جب قوم انہیں پوچھنے لگی کہ اگر تم کہتے ہو کہ مدعا بڑی عبادت ہے، ان کو خلفائے ثلاثہ نے روک دیا، تراویح بڑی بدعت ہے، ان کو خلفائے ثلاثہ نے جاری کر دیا، جب علی کی حکومت آئی تو علی نے ان کو بند کیوں نہیں کروایا، مدعے کو جاری کیوں نہیں کروایا؟ آگے کہتے علی مجبور تھے، علی نے تقیہ کیا، علی نے یہ کیا وہ کیا۔ یہ انکسار کرنے والا عبداللہ ابن سبا ہے، عقیدہ امامت کی بنیاد رکھنے والا عبداللہ ابن سبا ہے، حضرت علی کا دشمن، خلفائے ثلاثہ کو قرار دے کر ان پر تبرہ بازی کا سبق دینے والا عبداللہ ابن سبا ہے۔ آج جو اس کے نقش قدم پر ہے یہ وہ لوگ ہیں جو یہودی تھے اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کو نقصان دینے کے لیے، امت کی وحدت کو توڑنے کے لیے، امت میں انتشار ڈالنے کے لیے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آئے تھے۔ یہ کرمنل ریکارڈ ہے جو آج بھی ہمارے ہاتھ میں، یہ کرمنل ریکارڈ ہے۔ دیکھو پولیس والوں، تمہارے ہاتھ میں اگر کسی کا کرمنل ریکارڈ آ جائے تم ان کے ساتھ دوستی رکھو گے؟ بولو نہیں رکھو گے نا؟ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، یہ ابو جعفر محمد بن حسن بن علی الطوسی چوتھی صدی کا یہ مجتہد ہے اور مذہب شیعہ کی اسماء الرجال کی معتبر ترین کتاب ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 108 پر انہوں نے یہ کہہ دیا ہے، وَذَكَرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَبَا كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ وَوَالَى عَلِيًّا وَكَانَ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى يَهُودِيَّتِهِ فِي يُوسَى بِن نُّونَ وَسِيُّ مُوسَى بِالْغُلُوِّ فَقَالَ فِي إِسْلَامِهِ بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی علی مثل ذالک۔ یہ کہتے ہیں چوتھی صدی کا یہ مجتہد کہتا ہے کہ عبداللہ ابن سبا یہودی نے بظاہر اسلام میں داخل ہو کر کلمہ پڑھ کر آیا تھا، اور یہ جب یہودی تھا اس وقت یوسا بن نون کے لیے کہتا تھا کہ یہ حضرت موسیٰ کا وسیع ہے، اور جب اسلام کا اظہار کیا اس کے بعد یہ علی کے لیے کہنے لگا کہ یہ پیغمبر کا وسیع ہے۔ اور آگے کہتا ہے وَقَانَ أَوَّلُ مَنْ شَهَرَ بِالْقَوْلِ بِفَرْضِ امامت علی، اور سب سے پہلا وَقَانَ أَوَّلُ مَنْ شَهَرَ بِالْقَوْلِ بِفَرْضِ امامت علی، سب سے پہلا علی کی امامت کو مشہور کرنے والا یہی عبداللہ ابن سبا یہودی تھا۔ سب سے پہلے عقیدہ امامت کو شروع کرنے والا، مشہور کرنے والا یہی عبداللہ ابن سبا یہودی تھا۔ اور اس کے بعد آگے اس عبارت میں لکھا ہوا ہے، کہتا ہے وَأَظْهَرَ الْبَرَاءَةَ مِنْ أَعْدَائِهِ وَقَاشَفَ مُخَالِفِيهِ وَأَكْفَرَهُمْ فَمِنْهَا هُنَا قَالَ مَنْ خَالَفَ الشِّيَّةَ أَصْلُ التَّشَيُّعِ وَالرِّفْضِ مَأْخُوذٌ مِنَ الْيَهُودِيَّةِ، کہ اصل جو رفض ہے یہ یہودیت سے ہے، اصل رفض جو ہے یہ ماخوذ من الیہودیت ہے۔ یہ کرمنل ریکارڈ ہمارے پاس جس کا ہو ہم اس کو گلے سے لگا سکتے؟ بولو بھائی گلے سے لگا سکتے؟ نہیں ہے، نہیں ہے۔ اگر تمہارے پاس کسی کا کرمنل ریکارڈ آ جائے تم تلاش کرتے ہو، پکڑتے ہو، سزا دیتے ہو۔ اگر سزا نہیں دے سکتے، پکڑ نہیں سکتے، تو کم از کم اس کے ساتھ محبت کرتے، ان کو سینے سے لگاتے نہیں تھے۔ تو سب سے پہلے عبداللہ ابن سبا یہودی نے عقیدہ امامت کو درج کیا۔ عقیدہ امامت عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ بغاوت ہے، اور یہ عقیدہ دینے والا وہی تھا جس نے وحدت امت کو توڑا ہے۔ ہمارے پاس یہ کرمنل ریکارڈ موجود ہے، ہمارے پاس جب ریکارڈ آ جائے ہم اس کو سینے سے لگا سکتے،
हम उनके साथ प्यार कर सकते नहीं हैं। जिन्होंने अकीदा इमामत पैदा किया, जिन्होंने तबर्रे वाले अकीदे का वजूद लाए, जो पैगंबर के कलमे के मुकाबले में कलमा पेश करते हो, अजान के मुकाबले में अजान पेश करते हो, नबूवत के मुकाबले में इमामत को पेश करते हो, निकाह के मुकाबले में मुद्दे को पेश करते हो, सच के मुकाबले में तकिए को पेश करते हो, कयामत के मुकाबले में रज्जत को पेश करते हो। ये एंटी इस्लाम फिरका है जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड उम्मत के उलमा के हाथ लग चुका है। जो उम्मत के सही माना में उलमाए हक होंगे वो कभी इन फसादियों को सीने से लगा सकते हैं। आखिरी बात अर्ज करता हूं, ये वहदत उम्मत के प्रोग्राम आज से नहीं, ये 1400 साल पहले से चले आ रहे हैं। मदीनतुल मुनव्वरा में आखिरी बात, यहूदियों ने मुनाफिकीन ने एक मस्जिद बनाई। मस्जिद बनाई, अज़ाइम क्या थे, इरादे क्या थे? इरादे ये थे कि हम हुजूर का मुकाबला करेंगे, हमारे पास भी एक मरकज होना चाहिए। हम इस्लाम का मुकाबला करेंगे, हमारे पास भी एक मरकज होना चाहिए। उन्होंने मस्जिद बनाई, अज़ाम यूं रखे और हुजूर अलैहिस्सलाम के पास चल कर आए, वहदत उम्मत का कारण लेकर, दावतनामा लेकर कि हुजूर हमने मस्जिद बनाई है और इसलिए बनाई है ताकि कोई बीमार हो, कोई कमजोर हो, कोई बारिश का मौसम हो, वो आपकी मस्जिद तक ना आ सकता हो, वो यही नमाज पढ़ लेगा, इसलिए हमने मस्जिद बनाई है। अज़ाइम कुछ और थे, जाहिर कुछ और किया, यानी तकियाबाज थे। क्या थे भाई? अगर कोई कहता है ना तकिया कुरान से साबित है, मैं कहता हूं बिल्कुल साबित है, उस दौर के मुनाफिकीन से साबित है। उन्होंने कहा कि हुजूर आप हमारी दावत कबूल फरमाएं और आप हमारी मस्जिद में आकर हमारी मस्जिद का इफ्तिताह करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाहिरी बातों को सुनकर उन्हें डेट दे दी। पता चला कि गैब का इल्म किसके पास है? बात समझ आई? हुजूर ने दावत कबूल कर ली और फरमाया कि मैं जंगे तबूक पर जा रहा हूं, जैसे ही वापस होऊंगा आपकी मस्जिद में आकर नमाज भी पढ़ाऊंगा, इफ्तिताह भी करूंगा। हुजूर अलैहिस्सलाम चले गए जंगे तबूक पर, ये आए तशहीर करने लगे कि पैगंबर आएंगे, हुजूर आएंगे, हमारी मस्जिद का इफ्तिताह होगा, पैगंबर नमाज पढ़ाएंगे। आप अलैहिस्सलाम जंगे तबूक से जैसे वापस हुए, अभी मदीना तैयबा में पहुंचे नहीं थे कि अल्लाह ने कुरान भेजा। वल्लज़ीना इत्तखज़ू मस्जिदन जिरारन व कुफ्रन व तफरीकन बैनल मुमिनीन व इरसादन लिमन हारबल्लाह व रसूलहू मिन क़ब्लु वला यहलिफुन्न इन अरदना इल्लल हुस्ना वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून। अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे महबूब, आप जहां जा रहे हैं ये तो मुनाफिकीन हैं और इनका एक अज़म ये है व तफरीकम बैनल मोमिनीन, ये मोमिनीन में तफरीक करना चाहते हैं। और उस दौर में मोमिनीन कौन थे? बोलो भाई। तो सहाबा में तफरीक करना ये काम मुनाफिकीन का था और आज तक उनकी औलादों का है। तो दोनों निशानियां मिल गई ना, एक तकियाबाज भी थे और तफरीकम बैनल मोमिनीन वाले भी थे। और देखें हकीकत में तफरीक वाले ये थे और वहदत की दावत भी वही दे रहे थे। तफरीकम बैनल मोमिनीन वाले खुद थे और पैगंबर को जाकर दावत देकर आए थे कि आप हमारे पास आ जाएं, इफ्तिताह करें। तो अल्लाह ने कहा, ए मेरे महबूब, ये जो आपके पास आकर इन्होंने कसमें खाकर बातें की है ना कि हम इसलिए मस्जिद बना के आए हैं ताकि कोई बीमार हो, कोई कमजोर हो, वो इधर नमाज पढ़ लेगा। आपने अल्लाह ताला ने फरमाया, वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकादिबून, मैं रब गवाही देता हूं ये झूठ बोलते हैं। यानी दोनों अलामतें इनमें पाई गई। ये तफरीकम बैनल मोमिनीन वाले भी थे, तकियाबाज भी थे और इन्होंने हुजूर को दावत भी दी थी।
आगे अल्लाह ने फरमाया ला तकुम फीहि अबदा, ए मेरे महबूब आपको वहां जाने की इजाजत तकियाबाजों ने, तफरीक वालों ने, सहाबा में तफरीक करने वाले तकियाबाज उस दौर में भी पैगंबर को दावत देकर आए थे। पैगंबर ने दावत कबूल करने के बाद रब के हुक्म से उस दावत को ठुकरा दिया और अल्लाह ने कहा ला तकुम फीहि अबदा, वहां जाने की आपको इजाजत नहीं है। अब देखें, अगर हुजूर अलैहिस्सलाम चले जाते तो किसी के पीछे जाके नमाज पढ़ते या किसी के आगे, सबके आगे होकर पढ़ाते? बोलो भाई, अगर हुजूर अलैहिस्सलाम चले जाते, मस्जिद ज़र्रार में चले जाते, किसी के पीछे नमाज पढ़ते या आगे पढ़ाते? बोलो भाई। तो अल्लाह ने यूं कहकर भी तो इजाजत नहीं दी ना कि कौन सा किसी के पीछे पढ़ेंगे, आगे पढ़ाएंगे ही तो सही। अल्लाह ने यूं कहकर इजाजत नहीं दी। पता चला अगर सफों में तकियाबाज हो तो मुसल्ले पर हुजूर को भी इमामत की इजाजत। बात समझ आई कि नहीं आई? अगर सफों में तकियाबाज हो, मुसल्ले पर हुजूर को भी इमामत की इजाजत रब देता नहीं है, तो आज के मौलवी को इजाजत हो सकती है? अल्लाह ताला ने फरमाया ला तकुम फीहि अबदा। यहां एक बात अर्ज करूं, अल्लाह ने इनका भांडा फोड़ दिया ना कि ये मुनाफिक थे जो आपको दावत देने आए थे। ये कौन थे? मुनाफिक थे। अब थे भी मुनाफिक तो सवाल ये पैदा होता है, इनके दिलों में हुजूर की मोहब्बत तो नहीं थी, फिर ये हुजूर को इसरार क्यों कर रहे थे कि आप हमारे पास आ जाएं, आप हमारे पास आ जाएं? जब मोहब्बत भी नहीं थी, थे भी मुनाफिक, ये हुजूर को क्यों दावत दे रहे थे, क्यों बुला रहे थे? हाँ, ये इनका पुराना तरीका वारदात है कि बड़ों को साथ बिठाकर निचले तबके का शिकार करना। बड़ों को साथ बिठाकर अगर मोहतमिम साहब आ जाएंगे तो उनके मदरसे के तलबा को तो आसानी से गुमराह कर लेंगे ना कि जी आपके बड़े आ गए, अगर हम गलत होते तो ये आपके बड़े हमारे साथ क्यों होते? तो ये पुराना तरीका वारदात है, बड़ों को साथ बिठाकर निचले तबके का शिकार करना कि अगर हम वो होते जो वो कहते हैं, अगर हम वो होते जो वो कहते हैं, या वो होते जो ये कहते हैं। अगर हम वो होते जो ये कहते हैं तो ये बड़े हमारे साथ क्यों होते? तो अल्लाह तो उनके सीनों को जान रहे थे ना, तो अल्लाह ने कहा महबूब ला तकुम फीहि अबदा, वहां जाने की इजाजत। बोलो बोलो, जाने की इजाजत। अब दावत देने वाले तकियाबाज थे या नहीं थे? दावत देने वाले तफरीकम बैनल मोमिनीन वाले थे या नहीं थे? वो किसी कॉन्फ्रेंस की नहीं, नमाज की दावत थी, तो रब ने नमाज पर भी जाने नहीं दिया। अगली बात, हुजूर गए तो नहीं, सहाबा को भेजा शरीक होने के लिए नहीं, आग लगाने के लिए। आग लगा दो, जला दो। और आगे अल्लाह ने एक और बात कही, कुरान पढ़ो। अल्लाह ने फरमाया ला मस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक्कु अन तक़ूम फी, कि इधर आप न जाएं, ये जो आप वाली मस्जिद है ना, ये पहले दिन से इसकी बुनियाद तकवा पर पड़ी है और ये मस्जिद ज्यादा हक रखती है कि आप इसमें नमाज पढ़ें। और एक और बात भी है, फीहि रिजालुन युहिब्बूना अन यततहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन, कि आपकी मस्जिद में ऐसे नमाजी हैं जो पाकी को चाहते हैं, अल्लाह फिर उनको चाहता है। आपकी मस्जिद भी अच्छी, नमाजी भी अच्छे, आप यहां ना जाएं वहां जाएं। तो पैगंबर की मस्जिद के नमाजी कौन थे? कौन थे भाई? सहाबा थे। अब देखें रब वही है, ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास एक नमाज पढ़ लें,
रब अपने महबूब को यहां जाने नहीं देता, और यहां अल्लाह भेज रहे हैं, वहां जाओ, इनके साथ नमाजें पढ़ो, अल्लाह वही है। पैगंबर यहां फजर में भी इनके साथ हैं, रब नहीं रोकता, जोहर में भी साथ हैं, रब नहीं रोकता, वहां एक नमाज भी पढ़ने नहीं देता, यहां नमाजें भी हो रही हैं, बदर में भी साथ हैं, रब नहीं रोकता, ओहद में भी साथ हैं, रब नहीं रोकता, हुनैन में भी साथ हैं, रब नहीं रोकता, ये नमाजें भी हो रही हैं, सफरे जिहाद भी हो रहे हैं, और आगे बढ़कर पैगंबर बारात लेकर जा रहे हैं, सिद्दीक़ अकबर के घर दूल्हे बनकर वापस हो रहे हैं, रब नहीं रोकता। अल्लाह वही है, वहां एक नमाज पढ़ने नहीं देता, यहां रिश्तेदारियां भी हो रही हैं, नमाजें भी हो रही हैं, सफरे जिहाद भी हो रहे हैं, और हुजूर अलैहिस्सलाम बारात लेकर फारूक आजम के घर जा रहे हैं, दूल्हे बनकर वापस हो रहे हैं, रब नहीं रोकता। हजरत उस्मान गनी 2 दफा बारात लेकर पैगंबर के घर आते हैं, दूल्हे बनकर वापस होते हैं, रब नहीं रोकता। अल्लाह ताला वहां एक नमाज पढ़ने नहीं देता, यहां नमाजें भी हो रही हैं, सफरे जिहाद भी हो रहे हैं, और रिश्तेदारियां भी हो रही हैं, रब नहीं रोकता। क्या अल्लाह ने लकीर खींच के बता नहीं दिया ये खोटे हैं, ये खरे हैं, ये झूठे हैं, ये सच्चे हैं, ये मुनाफिक हैं, ये मोमिन हैं, ये गद्दार हैं, ये तेरे यार हैं। बात समझ आई कि नहीं आई? तो वहदत उम्मत की बात करने वाले उस वक्त भी थे, लेकिन अल्लाह ने हुजूर को वहां जाने नहीं दिया था। और आज जो अकीदा इमामत, नबूवत के मुकाबले में इमामत, कयामत के मुकाबले में रज्जत, और जी निकाह के मुकाबले में मुद्दा, सच के मुकाबले में तकिया पेश करके एंटी इस्लाम बनाकर उन्होंने पेश किया है। जो उलमा वहां शरीक हुए हैं, मैं उन्हें दावत इस्तिगफार देता हूं, दावत तौबा देता हूं। तौबा करो, इस्तिगफार करो। जो सिद्दीक़ अकबर को काफिर कहता हो, सहाबा को मुर्तद कहता हो, अम्मी आयशा पे लानते करता हो, मदारिस में किस मुंह से तलवा को तुम काल अल्लाह काल रसूल पढ़ाओगे? इसीलिए इस्तिगफार करो, तौबा करो, कलमा पढ़ो। पैगंबर के, सहाबा के दुश्मनों के साथ बैठकर तुमने एंटी इस्लाम फिरके को तकवीयत दी है। इसलिए हम इंशाअल्लाह हकीकी वहदत उम्मत पेश करके कौम को बताएंगे कि वहदत उम्मत जो है वो खुलफाए राशिदीन के दौर में है। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली का कलमा भी एक यही इबादत है, अजान भी एक यही इबादत है, नमाज भी एक यही इबादत है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान के एक एक शहर में हम वहदत उम्मत का असली नक्शा सामने रखते रहेंगे। तमाम साथी साथ दोगे, सहाबा का दिफा करोगे। और आखिरी बात ये अर्ज करता हूं, अगर आप जिस मदरसे के अंदर चंदा देते हो, अगर उस मदरसे का गया है, तो आइंदा चंदा देने से पहले आपने ये सवाल जरूर करना है, आप वहां क्यों गए थे? करोगे? अगर आप किसी मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं और नमाज का इमाम पेश इमाम वहीं गया है, तो आपने वहां नमाज पढ़ने से पहले सवाल जरूर करना है कि आप वहां क्यों गए थे। करोगे? बैठे बैठे